सालायगिरिफोरा भारत भूटान सीमायाव बीजेपी सरकारनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों। तामुलपुर जिल्लानि भारत भूटान हादरनाङारि राजालामायाव ट्राक गारि सालायगिरिफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों। थांनाय हरनि समाव राजालामाखौ होथेनानै गोख्रों खुद्रिसारनायजों बीजेपी सरकारनि हेंथायै सोमावसारदों। बीजेपी सरकारा लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 18% जीएसटी जाबसिननाय आरो पार्किंनि बेसेनखौ बांहोनायनि थाखाय बेरेखा खालामनानै गोख्रों खुद्रिसारदों। बिथांमोना अजद होनाय बायदिब्ला सिगांनि रुजुनायाव ट्राक आरो ट्रेलर बिगोमाफोरनि पार्किंनि बेसेनखौ 4-5 गुन बांहोनानै रांखावरियाव नारसिनदों बीजेपी सरकारा। गारि सालायगिरिफोरा कास्टम बिफानजों बिसोरनि खामायनायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों, जायनि थाखाय सोमावसारगिरिफोरा बीजेपी सरकारनि हेंथायै रागा जोंनानै सोमावसारदों। फारसेथिं दारागा मेला सिमायाव लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियानि सामलायगिरि डीसी मरियाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि सरकारनि गोदान नेमखान्थि बायदियै पार्क खालामनाय गारिफोरनि टेक्सखौ एसे बारायदों। प्राय 100 পৰা 200 কেতিয়াবা 250 এনেকুৱা হয় সময় সুযোগে। আজি প্ৰায় হয়তো 70-80 খন আছে, কিন্তু আমি আগতেও কৈছিলো যেতিয়া 250 টকা কৰিছিল তেওঁলোকে কোনো কথা আমাৰ নামানিলে। এতিয়া আমি ভাবিছো সকলোৱে লগ হৈ কেনে আমি ষ্ট্ৰাইক কৰিম যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এই বস্তুটো উঠাই নলয়, আমাৰ মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰটো কমাই নিদিয়ে। টেক্সৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, পাৰ্কিঙৰ ক্ষেত্ৰতে হওক 18% জিএসটি পাৰ্কিঙত লগাইছে। এইখন চৰকাৰে আৰু কিমান জ্বালা দিব মানুহক, সৰ্বসাধাৰণক কিমান জ্বালা দিব? এই জ্বালা সহ্য কৰা নহ'ব, আমি কোনোপধ্যে মানি নলওঁ। আৰু যেতিয়ালৈ এই বস্তুটো আমাৰ মানি নলয়, এই দাবীটো আমি মানি নলয়, তেতিয়ালৈকে আমাৰ যে ষ্ট্ৰাইক হ'ব। ভূটান সীমান্তত কোনো গাড়ী আদান প্ৰদান কৰা নহ'ব, কোনো বস্তু আমি লোড আনলোড নকৰোঁ, কাষ্টম নকৰোঁ, একোৱেই নকৰোঁ। আমি ফুল্লি ষ্ট্ৰাইক হৈ থাকিম। আমি ইয়াতে কণ্টিনিউ মানে ট্ৰান্সপোর্ট লাইনৰ এইবিলাক কাম হৈ থাকে। এইটো ট্ৰেড চেণ্টাৰ হয়, দৰঙা মেলা অন্তৰ্গত। তো আগতে আমাৰ ইয়াতে পাৰ্কিং চাৰ্জটো একেবাৰে নাছিল, 0 আছিল। তাৰে পিছত LPI বুলি আহিলে আমাৰ ইয়াতে চৰকাৰী বুলি, লেণ্ড পোৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া, তেওঁলোকে চাৰ্জ আমাক কৰালে পাৰ্কিঙৰ কাৰণে। চাৰ্জৰ নামত তেওঁলোকে 250 টকা লয়, ইনক্লুডিং GST। তেওঁলোকে 18% GST লয়। পাৰ্কিঙৰ নামতো GST মানে শোধন কৰি আছে এইখন চৰকাৰে। সেই কথাক লৈ আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। লগতে তেওঁলোকে আজিৰ পৰাই সেই 250 জায়গাত 550 টকা পাৰ্কিং চাৰ্জ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পাৰ্কিং চাৰ্জটো অন্য জায়গাৰ দৰে নহয়। এই পাৰ্কিং চাৰ্জটো এদিনত বুলি কথা নাই, ৰাতি 12 বজালৈকেহে থাকে। আমি সকলোতে দেখিছোঁ 24 ঘণ্টাৰ পাৰ্কিং থাকে। ইয়াতে 1 ঘণ্টাতো যদি আপোনাৰ কাষ্টমত গাড়ীখন ক্লিয়াৰেন্স হৈ কেনে গুচি যায়, তথাপি তেওঁলোক 550 টকা দিব লাগিব আৰু এক্সট্ৰা আমি 18% GST দিব লাগিব। তাৰোপৰি যদিহে 12 বজাৰ পিছত কিবা বিজুতিৰ কাৰণে যদি গেট পাছটো আজি নাহে গাড়ীখনৰ, অহা কাইলৈ আহে, তেন্তে তেওঁলোক আমি 2 দিনৰ পাৰ্কিং দিব লাগে। তাৰ কাৰণে আমি আজি সমূহ ড্ৰাইভাৰ, ট্ৰান্সপৰ্টাৰ আৰু ইম্পৰ্টাৰসকলে ইয়াতে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আৰু আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাম যে আমাৰ এই দাবীটো মানি লওক, কাৰণ মানুহৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ কৰিব নালাগে, মানুহক গুলিয়াই মাৰিব নালাগে যদিহে এনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে। কাৰণ 550 টকা এদিনত পাৰ্কিং আমি আজিলৈকে কত শুনা নাই। গুৱাহাটীত আমি দেখিছোঁ চৰকাৰী পাৰ্কিং বহুতো আছে, তাতে 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে 250 টকা পইচা লয়, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে 1 ঘণ্টাৰ কাৰণেও তেওঁলোক 550 দিব লাগিব। তাত আকৌ আপোনাৰ 18% GST ইনক্লুড হ'ব, যিটো সমূহ আপোনাৰ টোটেল হৈ যায় 649 টকা। এজন ড্ৰাইভাৰ বা এজন মালিকে এখন গাড়ী চলাই কেনে কিমান টকা পায় সকলোৱে জানে। আজিৰ যুগত GST হওক বা যিকোনো জেগাতে হওক খৰচ কিমান সকলো মানুহে জানে। তেনেস্থলত আমি এদিনত বা 1 ঘণ্টাত বা 2 ঘণ্টাত 649 টকা এওঁলোক চাৰ্জ কেনেকৈ দিম? সেইটো আমাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈছে। এইটো তেওঁলোকে মানি ল'ব লাগিব আমাৰ দাবীটো। এইটোৱে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। ড্ৰাইভাৰসকলৰো এইটো মানে বহুত আফচোচৰ কথা। তেওঁলোকে মানে কৈ আছে যে আমি কিবা কৰি বচাই বোলে দিনটোত 1000-1500 টকা কিবা কৰি পাওঁ, তাৰে ওপৰত যদি 650-700 টকা এওঁলোকক দিব লাগে। আপোনালোক এইটো কথা জনাওক যে 650টো অনলি পাৰ্কিং চাৰ্জ হয়। তেওঁলোকে ৰিচেণ্টলি কৈছে যে তেওঁলোকে ৱেট ব্ৰিজৰ মানে আৰম্ভ কৰিব। ৱেট ব্ৰিজৰ তেওঁলোকে চাৰ্জ লগাইছে এখন গাড়ীত প্ৰায় 450 টকা। এই 450ৰ ওপৰত আপোনালোকে ভাবক, আৰু 18% এক্সট্ৰা GST। তে মানুহক গুলিয়াই মাৰিব নালাগে, মানুহক এনেকেই মাৰিলেই হ'ল। গতিকে এই চৰকাৰখনক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। আৰু এই আমাৰ দাবী মানি নললৈকে আমি ফুল্লি ভূটান সীমান্ত আমি স্ট্ৰাইক কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ধন্যবাদ। हम लोग का मजबूरी है, हम लोग को दिन भर दिन ये लोग अत्याचार करता है। कास्टम में पहले हम लोग से 200 रुपये लेता रहा, अभी 500-600 रुपये
रुपया बोलता है, अत्याचार करता है, 700 रुपया मांगता है। 1 घंटा खड़ा होने से भी हम लोग सही पे 200 रुपये 500 रुपये लेता है। अभी बोलता है कि 1000 रुपया 1200, जितना दिन रुकेगा डेली का बढ़ता ही रहेगा। 24 घंटे का 12 घंटे के बाद में ये लोग का पैसा डेली बढ़ता रहेगा। पार्किंग में कितना? दूसरा जगह में कहीं नहीं है, 300 रुपये से 250, 300 रुपये से ऊपर कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ पर आके तंग करता है। ये अनोखा पार्किंग है। लोग हम लोग को अत्याचार कर रहेगा, कोई वो नहीं होता, बिना मतलब के परेशानी करतेगा, कोई बात नहीं है, बिना मतलब के वो तंग कर रहेगा। हम लोग चाहते हैं जो पहले था वही रहने दो और हम लोग का अत्याचार मत करे, बस इतना ही बोलने चाहते हैं हम लोग। ये गवर्नमेंट जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी इंडिया का डिसीजन है वो भी उसका नहीं है, मिनिस्ट्रीज का कंसल्टेंट से सभी का अप्रूवल से ये चीज़ होता है। और जो रेट है ये रिवाइज जो है टाइम टू टाइम होते हैं। अभी काफ़ी लंबे टाइम के यहाँ तो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, 3 साल या उसके ज़्यादा टाइम हो गया। उसके बाद अथॉरिटी ने रिवाइज किया है। अथॉरिटी रिवाइज क्यों करता है? क्योंकि जो अपना जो भी फैसिलिटी देता है उसको फंक्शन करने के लिए, क्योंकि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है तो ये उसको चलाने के लिए उसी रेशियो में वो अपना इसको रिवाइज किया है। उन लोगों ने बोला कि पहले 300 रुपया था पार्किंग, हाँ पर गाड़ी, तो अभी कितना है आप लोगों का? नहीं, वो गाड़ी पर गाड़ी का हिसाब नहीं है, वो गाड़ी का जो कैपेसिटी है अलग अलग गाड़ी का अलग अलग रेट है। ठीक है, 130 से लेके 330, फिर मतलब 420 जो गाड़ी का साइज़ है वैसे बढ़ जाता है, उस तरह से रेट है। ऐसे नहीं है कि एक ही फिक्स रेट है, वो सब रेट है उसी रेशियो में से। वो तो मैंने कॉपी आपके पास है ही है, आप उसमें देख सकते हैं अलग अलग गाड़ी का अलग अलग रेट है, वैसे रिवाइज किया है। इंक्लूडिंग GST, एक्सक्लूडिंग GST तो 18%। हाँ 18%। वो GST पहले भी था। मतलब ये जो गाड़ी है, 1 घंटा पार्किंग करने से भी उतना ही देना पड़ेगा? हाँ, रेट का ऐसे है कि उसमें अगर गाड़ी अंदर में आएगा तो फिर हमारा यूनिफॉर्म रेट है। ऐसे नहीं है कि आवर का या उसका हिसाब है, वो गाड़ी का है, एक पर डे का हिसाब से रेट है, पर डे के लिए। फिर वो अलग से कोई स्पेसिफाई नहीं है कि 1 घंटा रहेगा या 24 आवर्स रहेगा, वो पर डे का हिसाब से रेट है। ये जो नोटिफिकेशन है ऑल इंडिया के बेसिस? ऑल इंडिया ऑल पोर्ट्स। कब निकला है? 7 इसको निकला 7 अप टू 7 नवंबर को नोटिफिकेशन दिया हुआ है उन लोगों को? हाँ, CHA के थ्रू दिया है हमने, CHA के थ्रू हमने दे दिया है। और फिर ये 10 से इम्प्लीमेंट होना था, बट हमने वो टाइम लिया 4-5 दिन, इसलिए वो फिर इम्प्लीमेंट होने में यहाँ पर आज से हुआ, बाकी जगह तो 15 से हो भी गया है। कस्टम ने उन लोगों को मैसेज भेजा है? किसको? ये ड्राइवर वालों को? कस्टम नहीं, वो CHA भेजेगा। CHA हाँ, CHA का काम है वो CHA का पार्ट है, तो CHA को हमने कर दिया, फर्दर काम तो CHA का होता है। अभी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसके सॉल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन ये है कि हमारा काम तो इतना ही है, जो ये चल रहा है हम उसको आगे फर्दर अथॉरिटी को हम भी अप्राइज कराएगा, बाकी तो फाइनल डिसीजन तो उनका अथॉरिटी के हाथ में। रोड तो पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ और हाँ, वो किया है, बट ये ऐसा नहीं है कि इस पार्टिकुलर पोर्ट के लिए है, तो अथॉरिटी तो यूनिफॉर्म डिसीजन लिया है ना, तो अभी सभी में इम्प्लीमेंट हो गया है, तो इधर भी करना पड़ेगा। फिलहाल समाधान सूत्र क्या है इस इलाके के लिए? रोड तो पूरा ब्लॉक हुआ है, ये तो भूटान इंडिया का रोड है। नहीं, ये जो अगर रोड ब्लॉक हो जाएगा तो दिल्ली तक जाएगा ये मैसेज? हाँ जाएगा तो फिर, बट ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है तो वो भी तो सोच समझ के लिया है, वो अपने लेवल पे अपने हिसाब से सोचेंगे, मैसेज जाएगा भी। इस जगह के लिए समाधान सूत्र क्या है? अभी के लिए हमारा समाधान सूत्र ये है कि भाई जो, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट हमने कर दिया है तो ये तो अभी तो करना पड़ेगा। फर्दर आपका रिकमेंडेशन आप दीजिए, बाद में गवर्नमेंट सोचेगी क्या होगा, वो फिर बाद में सोचेगा। आपसे बातचीत हुई है क्या उन लोगों को? हमसे कुछ लोगों का बातचीत हुआ था, CHAs वगैरह का, उनको हमने यही बताया कि, और हमारे पास कॉल आया था 1-2 जगह से, तो हमने कॉल में ये बताया कि आप अभी तो देखो इम्प्लीमेंट हो गया है तो करना पड़ेगा, आपका रिकमेंडेशन जो भी आएगा हम आगे भेजेंगे, आगे अथॉरिटी डिसीजन लेगा क्या करेगा, हमारा हाथ में तो उतना नहीं है। ठीक है।